My dear students, my name is Pranjal Tripathi. Welcomes you all and wishing you all a very good morning. So students, in the previous videos I have taught you some topics related to this chapter 3 of physics, that is gravitation. In the previous video I have taught you about some numericals. Today we are going to discuss the pen paper test 1. So the question 1 is, what is the value of gravitational constant on the earth and the moon? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपसे कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देयरफॉर इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल gravitational constant G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So this is the value of universal gravitational constant G, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. In the numericals, for the ease of the calculation, we put 6.7 into 10 to the power minus 11. Okay. Second question is, name the force responsible for the moon revolving around the sun. ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि मून के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मून मोशन करता है ना अर्थ के अराउंड. Then the force responsible for the motion of the moon is centripetal force, and the centripetal force is provided by the gravitational force between earth and the moon. Okay? मून को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहां से? ग्रेविटेशनल फोर्स से. किसके किसके बीच में? अर्थ और मून के बीच में. What is the third question? Name the scientist who gave 3 laws of this was your second. Third one is, name the scientist who gave 3 laws of planetary motion. We all know that Kepler was the scientist. The fourth question is, who explained the motion of the planets based on the gravitational force between sun and the planets? ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कि बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मोशन करते हैं? That scientist was Newton. The fifth question is, state Kepler's third law of planetary motion. Third law of planetary motion क्या कहता है? T square is directly proportional to r cube, where T is the time period of the revolution of that planet around the sun, and r is the orbit. R is the radius of the orbit on which that planet is revolving. Okay. Now we will discuss question number 6. What is question number 6? Mention any 2 applications of universal law of gravitation. कोई भी ऐसे 2 एप्लीकेशन बताने हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कहां कहां अप्लाई करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज एक्सिस्टेंस of our solar system. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि देयर इज ग्रेविटेशन. एंड सेकेंड, एक और पूछा है आपसे. सेकेंड वन इज मैन ऑन अर्थ. कोई भी इंसान अगर पृथ्वी पर खड़ा है
देन दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? स्पेस में देखिए आप, स्पेस जो अंतरिक्ष है उसमें जो लोग जाते हैं वो स्विम करते हैं, स्विम बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू क्रिकेट बॉल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल बट बिटवीन ए क्रिकेट बॉल एंड द अर्थ एक्सट्रीमली लार्ज? तो जब मैं आपको ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज इज वेरी स्मॉल। इट इज सच स्मॉल दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट थ्रू नेकेड आइज ऑल्दो देयर इज सम फोर्स। हालांकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, लेकिन वो इतना स्मॉल है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट इन सेकेंड केस देयर इज द केस बिटवीन अर्थ एंड द क्रिकेट बॉल। अब क्योंकि अर्थ का जो मास है, जो साइज है, जो डायमीटर है, वो उस क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है एंड देयर इज टू बॉडीज हैविंग लार्ज मास, there we can see a considerable effect of gravitation. Okay, what is the eighth question? Eighth question is asking the state Kepler's first law of planetary motion. Kepler का जो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, Kepler's first law indicates that all the planets revolve around the sun in elliptical orbit, keeping sun at one of its focus. कि सभी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। सी दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड कीपिंग सन एट इट्स वन ऑफ इट्स फोकस पॉइंट। This is major axis, this is minor axis, this is focus 1, this is focus 2। तो सन आपको या तो फिर इस फोकस में मिलेगा या फिर इस फोकस में। ओके, दिस वाज द Kepler's first law। What is the ninth question? What happens to the gravitational force between two objects when the distance between them is half? अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या असर होगा जब उनके बीच की, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए। तो सबसे पहले वी नो दैट द क्वेश्चन नंबर इज 9। वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये फर्स्ट केस में था इसलिए हमने मान लिया कि ये F1, ठीक। अब F2 में क्या कह रहा है कि R को डबल करना है, R को हाफ करना है, सॉरी R इज हाफ। तो Gm1m2 और R की जगह क्या हो जाएगा R/2। जब हाफ कर देते हैं, हाफ कर दिया कोई चीज तो अपॉन में हो जाती है 2, डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है ना कि, तो यहाँ पर न्यू रेडियस दैट इज r' इज इक्वल टू R/2। तो अब यहां पर R/2 रख देते हैं, R की जगह। सॉल्व करते हैं तो Gm1m2 अपॉन r²/4। अब ये 4 उठ के ऊपर चला गया तो ये हो गया 4Gm1m2 अपॉन r²। अब देखिए इसकी जगह हम लोग F1 पुट कर सकते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ F1 इज Gm1m2 अपॉन r²। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 4F1। इस पूरी जो वैल्यू है उसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट किया, F1 पुट कर दिया। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया, F2 इज 4 टाइम्स F1। ओके, तो ये कब होगा
जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो उनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो जो नया फोर्स होगा वो 4 टाइम्स होगा पहले वाले फोर्स के। जो पहले वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उनके बीच में, तो जो नया वाला होगा वो उसके 4 टाइम्स होगा। अब यहीं अगर बात कर ली जाए, देयर इज क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले 9 की जगह 9 अभी आप लोगों ने पढ़ा, अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा ही सिमिलर है इस क्वेश्चन से, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। जब डिस्टेंस डबल कर दी जाए, मींस जो r' है वो 2r, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। जो नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला था वही लगाया। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, r' इज इक्वल टू 2r। ओके, तो F2 Gm1 m2 अपॉन r की जगह क्या रखेंगे, 2r, मींस रेडियस नहीं, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज डबल। ये r से क्या हो गया, 2r हो गया। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 4r²। Here we can see that this is F1। इतनी चीज की जगह हम F1 लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 1/4 F1। तो यहां से रिलेशन मिल गया F1 F2 में कि F2 इज 1/4 F1। ओके, तो अब ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो जब डिस्टेंस हाफ कर लेते थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो रहा था, बट अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे, तो जो नया वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो पुराने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के हाफ नहीं, डिवाइडेड बाय 4 होगा। ओके, समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाउ मीन्स कैसे वो डिपेंड करता है, तो हम लोग देख सकते हैं। The gravitational force depends upon the distance between them is inversely proportional to the square of the distance between them. If there are two bodies, then the force of gravitation is inversely proportional to the square of distance between them. What is r? R is the distance between two bodies. इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, इसी को ही बोलते हैं न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें कि ये बताया जाता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज स्टेट केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। केपलर का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या कहता है, state Kepler's second law of motion. Second law of motion was saying that the line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. I have very much clearly taught about these three laws. Okay. Now our next topic is free fall. Free fall. As the name suggests, what is free fall? Free fall is any object falling from any height under the effect of force of gravitation of Earth and no other force acts on it. Means कि free fall एक ऐसी कंडीशन है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरता है और उस पर
अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी एक फोर्स भी एक्ट नहीं करते। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव होल्ड दिस चॉक, व्हेन आई विल लीव दिस चॉक देन इट इज सेड टू बी फ्री फॉलिंग बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चॉक। तो जब हम इस चॉक को छोड़ेंगे तो ये फ्री फॉल करेगी बिकॉज कोई भी दूसरा फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है। देखिए, ठीक, देन दिस फ्री फॉल इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल मीन्स कि पृथ्वी हमारी हर चीज को खींचती है अपनी तरफ, तो ये उसी का ही एक इफेक्ट है फ्री फॉल। ध्यान देने वाली बात यह है कि when any body is freely falling then no other force will act on it। कोई भी दूसरा फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। एक गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था फ्रीली फॉलिंग बॉडीज से रिलेटेड, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट में जो गैलीलियो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या टेलीस्कोप की डिस्कवरी की, उन्होंने ये बताया, सबसे पहले तो वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर चढ़े। वहां से उन्होंने क्या किया कि एक स्टोन जो था उसका साइज अलग था, उसका मास अलग था, दूसरा स्टोन जो था वो उसका साइज अलग था और वो कुछ छोटा था। तो दो स्टोन उन्होंने लिए एंड ही लेफ्ट बोथ द स्टोन्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम दैट हाइट। उन्होंने दोनों ही स्टोन्स को साइमल्टेनियसली छोड़ा। तो हुआ ये कि दोनों ही स्टोन, बड़ा जो था साइज में और जो छोटा था, they touched the ground at the same time। वो दोनों ही ग्राउंड को टच किए एक ही समय पर। There was nothing time lapse between both those stones। उनके बीच में कोई भी टाइम लैप्स नहीं था। तो गैलीलियो ने ये कहा कि it does not depends upon the mass of an object। The acceleration due to gravity does not depends upon the mass of an object। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो एक्सेलरेट किया जिस फोर्स ने, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ने, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन उन्हें मिला वो उनके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा था। देख लिया उन्होंने कि दो ऑब्जेक्ट थे, दो स्टोन थे, उनका अलग अलग मास था, फिर भी वो सेम टाइम पर ही गिरे, ग्राउंड को उन्होंने सेम टाइम पर ही टच किया। देन गैलीलियो ने क्या किया कि एक फ्लास्क ली, एक ट्यूब ली, उसमें से उन्होंने वैक्यूम भर दी, या फिर हम कह सकते हैं कि एयर को सक कर लिया, खींच लिया अंदर से वैक्यूम पाइप के थ्रू, और उसमें जो फ्लास्क थी, जो ट्यूब थी, उसमें केवल वैक्यूम रह गई। उस ट्यूब में एक फेदर पड़ा था, फेदर मीन्स पंख, और एक स्टोन पड़ा था। ओके, तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अगर जब मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट जो सेम टाइम पर गिरने चाहिए नीचे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब उन्होंने ट्यूब को पलटा ऐसे करके, तो सेम टाइम पर वो फेदर भी उसी टाइम पर टच हुआ ग्राउंड को, वो बॉटम को, उसकी फ्लास्क के बॉटम को, और वो स्टोन भी उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली टच हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि there is no resistance of air in the flask, so these both the objects, that is feather and the stone, touched the bottom of that tube at the same time। क्योंकि उस ट्यूब में एयर नहीं थी तो एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं था, उस फेदर और उस स्टोन पर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट किया। इट मीन्स दोनों ही बॉडीज फ्रीली फॉलिंग थी। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि उस स्टोन को और उस फेदर को नॉर्मली एयर में ड्रॉप किया,
तो जाहिर सी बात है कि स्टोन पहले टच किया ग्राउंड को एंड द फेदर टच द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों हुआ? इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। ओके, जो फेदर था उसकी जो एरिया थी, कवरिंग एरिया या हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू इट्स मास। उसका मास कम था, मास के कंपैरिजन में उसकी एरिया ज्यादा होने के कारण एयर का रेजिस्टेंस उस पर एक्ट किया, उस फेदर पर। बट इन केस ऑफ स्टोन, स्टोन का जो साइज था वो भी छोटा था, एयर का उस पर रेजिस्टेंस इतना वर्क नहीं किया। साइज छोटा था और मास ज्यादा होने के कारण एयर का रेजिस्टेंस का इफेक्ट उस पर कम दिखा। हालांकि कुछ ना कुछ एयर का रेजिस्टेंस होगा जरूर, बट द इफेक्ट वॉज वेरी लेस ऑन द स्टोन। ओके, hence we can say that it does not depends upon the mass। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता।